Thanks to Foxstar, thanks to Phantom, Vikas, Vikram, Vijay Singh, Deena, whole lot of people. Thanks to RK, who read the script in a flight and called me and said that ये film मैं कर रहा हूँ. The moment he landed, he called me before he got out of the flight. And Anushka, who's been on board before anybody, Manish Chaudhary, KK, Vivan, and the man who was cast at the last moment, Karan Johar. So before I proceed, let me first show you the second trailer of the film. With the second trailer, we kickstart the actual promotions of the film. Can we have the trailer, please? Again, please. एक बार और. Let me first invite on stage my two partners in crime who believed in this dream. It's an impossible dream to believe in. And can I have Vikram Motwani on stage, please? My producer. And Vikas Behel. Vikas Behel, I think he's still on the way. And the one man who made it possible for us to realize this dream, Mr. Vijay Singh, please. And now I think it's the time to invite the cast of the film. So let me first introduce the heartthrob of the country, the heartthrob of Bandra, the sexiest man in Bandra, Karan Johar. And now I'll call the second most popular man in in the film, in Bandra, Johnny Balraj, Ranbir Kapoor. That's how he is introduced in the film as well. So that's how he fumbles into the film. And now the first person who actually came on board on the film, much before the film started, somebody who showed her faith much before I even spread out the script anywhere, Anushka Sharma, Rosie Norona. Is Satu okay? हमारे बाकी एक्टर्स अभी आ रहे हैं. Satdeep Mishra, KK Menon, Manish Chaudhary, they're all on the way. There's also another actor who plays Karan Johar's henchman and is also a writer of the film, Vasan Bala. He's standing right there. Can you please stand up? और आज आपको जो सवाल पूछने हैं, आपने मतलब इतनी कहानियां सुनी इस पिक्चर के बारे में सारी दुनिया ने, और मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं कि क्या क्या हमारी फिल्मों के बारे में बात हो रही है. तो आज जो पूछना आप पूछ सकते हैं, सारे सवाल पूछ सकते हैं. और बिफोर दैट, हाँ विजय टेबल क्या है?
मधु जी कहाँ हैं? मधु जी आप नहीं आएंगे? आ जाइए ना, आ जाइए ना थोड़ा। मधु मधु का एक रूल है, वो कभी फिल्म में अपना नाम एज अ प्रोड्यूसर डालते नहीं है, लेकिन हमारे पीछे खड़े रहते हैं हमेशा। हेलो अनुराग जी। Karan, you want to say something about the film? I should say that about Anurag. Uh, Firstly, I'd like to thank all the members of the media for coming in such large numbers. As you know, this has been our second and important theatrical unit that we've released just now as we speak online. The film actually has been open to conjecture from the time that actually it started, and even pre-release, the buzz and banter about it continues. All I have to say personally, I think it's been the most exhilarating experience of my life, being directed by Anurag Kashyap, from a man, from a relationship that began with hate, that has now culminated into intense love, and there is absolutely no pun in that thought. It's really been quite a journey for me in the film, and working under him has been like going to film school. I felt I had to unlearn everything I ever knew about cinema and actually learn something absolutely new. Working with the two of them, actually Anushka and I did very few days of work, but the few days were memorable. And Ranbir actually co-directed the film with Anurag, where I'm concerned, because Anurag would give me one instruction and Ranbir would give me three others. Most of my scenes were with him, so I felt I was being directed by him as well. And I have to say, Ranbir has the makings of a great filmmaker, which is a great fallback plan for him if all things do fail. I have to say a big word to Phantom, which I think has been putting out such tremendous content almost about 3 or 4 times a year. I think truly this film will kind of cement and seal that when it comes to new age path-breaking content, Phantom is definitely the one-stop shop. And I think supported so superbly and dynamically by Fox Star. Vijay, thank you very much for lending such tremendous support into this type of cinema. There is always so much that is said about cinema like this, where they say, you know, is this mainstream, is it commercial? But eventually we all have to know a good film is a good film and you should not categorize it. And Bombay Velvet is that film. It's a good film. And I think thank you. When it comes to the funding, I think that's most critical for a film with a vision. And I think Fox Star pulled all stops to execute the film in its best possible way. So thank you. Thank you to the entire team at Fox, the marketing team, the production team, the distribution, all of them. And I think I've behaved like I have funded this film. I've spoken so much. So I'm going to now pass the mic on to Anushka, who's going to sing a song like she does on stage. No. I think Karan has said a lot, and we all are in agreement. As Ranbir was yet again directing Karan and saying, "Let's open the open the floor for questions." I would like to now call this press conference open. Anushka ji, this is Rajinder Singh from Makarana magazine. It's a Bollywood magazine. पहला सवाल तो आपसे मेरा अनुराग जी से था, वो मैं कर लूँगा बाद में. आपसे करता हूँ कि आपने NH10 की, PK की, अब आप हैट्रिक में आपका क्या इरादा है? हैट्रिक में क्या इरादे तो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी. लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज के बाद लोग क्या सोचते हैं. लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और प्यार से इस फिल्म को बनाया, हर एक इंसान ने, हम एक्टर्स ने, फिल्म मेकर जिन्होंने इस फिल्म को पुटअप किया है, जो इस स्टेज पे हैं, और जिन्होंने जो लोग ने इस फिल्म पे काम किया है. सो वी जस्ट होपिंग कि जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है और जितना बिलीफ हमें था, वो लोगों को देखने को मिलेगा जब वो फिल्म देखेंगे. थैंक यू. अनुराग को. अनुराग, थैंक यू. अनुराग जी, आपने खासकर करण जी में क्या बात देखी कि इतना ज़बरदस्त रोल कर पाएंगे? जरा बताइए, आपने कैसे कन्विंस किया, वो कैसे तैयार हुए? आप क्या है? हेलो, आपने मुझ में खामी क्या देखी कि आपने ये सवाल किया? आपने बहुत दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हुआ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे. उन्होंने आपके बारे में, बैंड्रा के बारे में बताया. पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में सेक्सी हैं, लेकिन आपने काम बड़ा अच्छा किया. तो आपने क्या देखी बात? आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ. और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया. अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है. आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी. मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ. करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे, और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी.
जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे। उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा। ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला। I was inspired and cheap, by the way, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए। हाँ, मुझे हमारे 11 budget रुपए, में आ गए। बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ और थोड़ा सस्ता भी। But it was a great experiment by Kashyap Saab. But No, it keep I'm you- so happy yeah. he said yes to the film, and when you see him in the film, you'll see that there's nobody else who could have been Khambata. हाय रणवीर, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके लेफ्ट में। सवाल है कि 60s का लुक था आपका, जॉनी बलराज बनना था, तो एग्जैक्टली जब हम ये पोस्टर देखते हैं और आपको देखते हैं तो कितनी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, रोजी का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. अनुराग, प्रमोशन में बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कब प्रमोशन शुरू होगा, इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि हार्डली 15-18 दिन बचे हुए हैं। नहीं, प्रमोशन शुरू हो चुका और हम लोग का एक बहुत फर्म बिलीफ रहा है किसी भी फिल्म के लिए की प्रमोशन टाइम पीरियड जो है वो इतना ही होता है। बाकी सब जो है आपका वो खामखा होता है, वो आप अपने आप को खुश करते हो। जैसे जब आप देखो बम्बई के अलावा कहीं शहर में होर्डिंग्स नहीं लगते हैं, और जब होर्डिंग्स कहाँ लगते हैं, वो हीरो के घर से लेके जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं, और प्रोड्यूसर के घर से जहाँ तक वो जाता है वहाँ तक लगते हैं। वो अपने आप को खुश करने के लिए होते हैं। तो हम लोग ने पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि हम ये सब चीज़ें दूर रखते हैं और हम लोग लेट्स फोकस ऑन रियल प्रमोशन और जिस तरह से करना चाहिए। तो इट्स वेरी स्ट्रैटेजाइज एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर बाय द होल टीम, और बहुत ही प्री डिसाइडेड था। इसीलिए कोई भी कुछ भी कह रहा था हम लोग ऐसे शांति से क्यों बैठे, बिकॉज़ हमें मालूम हम कर क्या रहे हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू पुट आउट देयर। रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी, इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग, डेंगू, इससे ज़्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है। बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स, अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू आर टेकिंग, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका। एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट। तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट। तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी। अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वेरी क्या कुछ जब मेरी ओरिजिनल तबीयत जवाब खराब देना। होती है अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, यू कैन रिलैक्स, आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है एंड ऑल दैट, सो दैट इज आल्सो गुड। आई डोंट नो व्हाट आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है। बट मोर देन इट्स प्ले ऑफ वर्ड्स मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज इन दोनों के जो प्यार है वो इतना पैशनेट है, और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये परहैप्स इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग सो, ज़्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज देयर इज नो नीड दैट दे हैव फ्रॉम वन अनदर, इट्स अनकंडीशनल लव। तो कभी कभी वो भी उनकी एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है, तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी। सो इट्स मोर लाइक द रेफरेंस टू द फिल्म एंड दैट्स व्हाई द प्ले ऑफ वर्ड्स। Hi Anurag, yo, to your left, yo, yeah. Considering To his right. Okay, I'm on the left. Your sorry. left. Yeah. Considering the title is Bombay Velvet, are you expecting any issues with the word Bombay, or is it going to be okay because it's set in that time?
I don't think there's going to be an issue. Even Prahlad ji has said there's no issue because the film जैसी फिल्म है और जिस समय की फिल्म है, और मुझे कहीं से अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई इशू का एक्सपेक्टेशन नहीं है बिकॉज वो जगह का नाम है बॉम्बे. इन दिस फिल्म इज लाइक अ नाउन, यू नो, नेम ऑफ अ प्लेस. Will the no smoking banner be there? Will the no smoking disclaimer still be there in the film? जब तक वो लॉ है तो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा. अनुराग, हर कैरेक्टर का लुक कितना इम्पोर्टेंट था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू पुट अप दैट पर्टिकुलर लुक ऑन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. सी डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप जीरो डाउन नहीं करते, जब तक आप फाइनल नहीं करते. एक बार फाइनल कर लेते हो और सब एक मोशन में चले जाते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है. वो एक बार डिसाइड हो गया तो सबको मालूम है. अनुष्का को पता है कि उसको रोज 2-3 घंटे लगने वाले हैं. रणबीर को पता है उसको रोज 1 घंटा लगेगा. करण को भी 45 मिनट लगते ही थे. तो वो सबको रेडी होने में टाइम लगता था उतना. वो एक बार लुक डिसाइड हो गया तब तक उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती. वो दिक्कत होती है वो डिसाइड होने से पहले. और सबके लिए हम लोग ने किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए. जिस तरह की हम लोग सेट बनाने के लिए भी हम लोग ने एक्चुअल बॉम्बे के पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स जो हैं वो रेफरेंसेस के तौर पे यूज किए. एक्चुअल बिल्डिंग्स वहाँ पे रिक्रिएट की ओरिजिनल साइज में. वो बस ये कि हमने बिल्डिंग्स के ऑर्डर चेंज कर दिए थोड़े बहुत बिकॉज वो पूरा बॉम्बे ही नहीं बना सकते थे. किस चीज के लिए दिक्कत आई होगी? एक्चुअली डेफिनेटली ये पीरियड फिल्म है तो एक्चुअली कोई छोटी-छोटी दिक्कत नहीं आई. चीज़ों मतलब का- जनरली आप देखते हैं जब बड़े बजट की फिल्म बनती है वो जाती है 150-200 दिन में. हमें ये फिल्म जो है अपने टाइट कंट्रोल बजट में खत्म करने के लिए और अच्छे से करने के लिए 75 दिन शूट करनी थी. हम लोग बहुत लंबा लंबा शूट करते थे और द काइंड ऑफ कोऑपरेशन आई गॉट फ्रॉम एवरीवन, वी हैव मैनेज्ड टू फिनिश द फिल्म इन 75 डेज. तो वो था, वो दिक्कत हमारी प्रोडक्शन हमारी असिस्टेंट टीम के लिए थी. अनुराग आपके राइट, अनुराग आपके राइट. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. अनुराग, हर क्राइम करने के पीछे एक मोटिव होता है, वैसे ही हर कहानी कहने के पीछे भी एक मकसद होता है, इरादा होता है. और आप चूंकि मतलब नॉन मराठी हैं या नॉन मुंबईट हैं, तो इस फिल्म में बॉम्बे को मतलब 60s के बॉम्बे को दिखाने के लिए किस किस्म की रिसर्च की, और इस फिल्म से आप क्या कहना चाहते हैं? रिसर्च हमारी का, मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूँ. मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं की है. कहना मैं कहानी चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा. से दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्यार होता था. उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं. आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, एप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया. और उस तरह की मोहब्बत होती थी उस जमाने में, और किस तरह के लोग भी हुआ करते थे. मैं सिर्फ कहानी कहना चाहता हूँ, एक समय दिखाना चाहता हूँ, और इस तरह की कहानी हम किस तरह से कह सकते हैं, किस तरह से उसको एंगेजिंग बना सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक होता था. कभी कभी वो पुराना समय जीना बहुत जरूरी होता है. और रिसर्च हमने काफी साल की, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे जो की राइटर हैं ज्ञान प्रकाश, वो खुद हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं प्रिंसटन के. उन्होंने खुद किताब लिखी है मुंबई फेबल्स. वो हमारे साथ थ्रू आउट थे. वासन बाला और तनिका चलम हमारे 2 राइटर. तनिका चलम ने बहुत समय स्पेंड किया एक एक डिटेल निकालने में. सोनल सावंत जो एक ऐसी आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्में ज़्यादातर करती नहीं है और बहुत कम करती हैं, जिन्होंने हर चीज़ वो ऑथेंटिकली रिक्रिएट करती हैं. पहली बार एक ऐसा प्रोडक्शन डिज़ाइनर था मेरे सेट पे जो हर शॉट पे मेरे फ्रेम पे मेरे साथ बैठा था, जो कि आदत हम बॉलीवुड वालों को नहीं है. राजीव रवि जिस तरह की सोर्स लाइटिंग और जिस तरह का मैजिक हम लोग क्रिएट करना चाहते थे, एक वर्ल्ड जो क्रिएट करना चाहते थे, तो रिसर्च हर डिपार्टमेंट में गई है. कॉस्ट्यूम में निहारिका भसीन खान, एक एक कैरेक्टर का एक सेपरेट बुकलेट बना था, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स का बुकलेट बना था. वो सारी डिटेल है जो हम मेकिंग में धीरे धीरे सब डाल रहे हैं, बिकॉज हमने जब इस तरह की फिल्म बनाई हम लोग सब कुछ शेयर करना चाहते हैं. हमने कैसे किया वो सब कुछ इंटरनेट पे आएगा. और हाँ बोलिए. Hello. हाँ जी, सॉरी. जी जी. ये मैं खुद के बारे में कैसे कह सकता हूँ? ये तो जब आप फिल्म देखोगे, मेरा सेटिस्फेक्शन मैं तो मुझे कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था मेरे लिए, जो मैंने कभी किया नहीं था. मैं सबसे कहना चाहूंगा, टेक्निकली ये तो डेब्यू है ना मेरा. अरे विकास वेल इज ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. विकास वेल, प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू. करण सर, करण, अनुष्का? इस फिल्म के बाद कोई अनुष्का? ऑफर मिला है करण सर, आपको? इस फिल्म हाँ? के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको? ऑफर, एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में. वो उसको काटा था, उसने ले लिया.
मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी. अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा. offers आए होंगे? अभी तक एक ही आया था. नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में. वो करना नहीं चाहिए. लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also. But I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर वुड लाइक टू गेट सपोर्टिंग रोल्स, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ. अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं. 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर. करण Hello, सर, Anushka. here, सोनिका है. सर आपको मूवी में जब आपका फर्स्ट पोस्टर आया एज ए विलेन, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए आपको देखकर कि फर्स्ट टाइम आप टीवी पे नजर आएंगे सिल्वर स्क्रीन पर, और वो भी विलेन के कैरेक्टर में. जी. तो जब आपने ये कैरेक्टर को हाँ कही, तो किस तरह के आपको लोगों ने क्या बोला कि कैसे लग रहे हैं आप, या कैसे आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेज मिले? और प्लस बॉलीवुड के कोई ऐसे विलेन्स हैं जिनसे आपने रेफरेंसेस ली, कोई ऐसे विलेन जो आपके फेवरेट रहे हो हमेशा से? देखिए, ये विलेन का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे किरदार के लिए, वो थोड़ा काफी ह्यूमरस भी है और इंट्रीगिंग भी. ह्यूमरस क्योंकि मैं कोई मोगैम्बो टाइप ऑफ विलेन नहीं हूँ इस पिक्चर में. ये कोई एक सर्टन काइंड ऑफ जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ऑल्टर्ड है, वो उस किस्म की मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो अनुराग ने कंसीव किया. तो मुझे पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे. और जब मैंने पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जब अनुराग आए थे मेरे ऑफिस तो एक्चुअली वो जब नरेट कर रहे थे फिल्म, आए तो वो मेरी फीडबैक के लिए नरेट कर रहे थे. हाफ वे थ्रू द फिल्म मैं सोचा था कि शायद मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर की हैसियत से आए हैं, एज ए व्हाट हैसियत. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नरेशन मैंने सुना और मैंने रिएक्ट किया, मुझे कमाल का लगा इनका जो स्क्रीन प्ले था. तो उन्होंने कहा कि विल यू प्ले खम्बाटा. तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मुझे कभी किसी ने फुल फ्लेजेड पार्ट कभी ऑफर किया नहीं. तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहा है. देन ही टोल्ड मी नसीरुद्दीन शाह वाज इन द रनिंग फॉर दिस रोल. तो मेरी और भी, मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैं नहीं कहूँगा. नहीं कहूँगा. तो उसके बाद क्योंकि टू बी कंपेयर्ड ऑन टू बी इन द रनिंग फॉर अ रोल दैट नसीरुद्दीन शाह, वो एडेड प्रेशर था. The only reason I really thought I'd do it, क्योंकि मैंने सोचा कि लाइफ में मुझे कोई विलेन का रोल कभी ऑफर नहीं करेगा एज एन एक्टर, until I'll get the opportunity of being directed by Anurag and working with Ranbir. And and I thought that was the biggest. और जब आप देखोगे पिक्चर तो आप ये डेफिनेटली आप सोचोगे कि जो कैरेक्टर है वो शायद मैं कर सकता था, वो मैंने नहीं देखा था. ये विजन सिर्फ अनुराग का था. आई होप इट वर्क्स आउट. आई डोंट नो. ये एनीवे मेरा क्या है, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स. अगर ये फ्लॉप हो गया मैं और भी कम है जमाने में. डिजाइन करता हूँ, जूते डिजाइन करता हूँ, फैशन टिप देता हूँ, लाइक ऑलराउंडर. थैंक यू. सर बॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कैसे कमेंट्स आपको मिले? कोई हैं? बॉलीवुड की आपने जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे बॉलीवुड comments में मिले? किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते. वो क्या कहेंगे, वो तारीफ मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे. अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया. तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा. मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना. करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग को? मैं नहीं लूंगा अनुराग को. क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूं. मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते. मैं पागल हूं. हम एक दूसरे को I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है. लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूँ. मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो. अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में. वो अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को. सॉरी. मिस्टर विजय, एक खबर आई थी कि फिल्म ओवर बजट हो गई थी, तो जरा इस पे लाइट डालेंगे. सच में हो गई थी, क्या था क्या नहीं था? देखिए, आई थिंक एज इसके पहले आई जस्ट वांट टू से अनदर थिंग. आई थिंक हम सब जानते हैं कि द फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ slightly different. Not bit, Vijay. Please say we are going through a big crisis. Going through a big crisis, but there are only 3 things that I believe we as filmmakers should really be looking at. Number 1, it starts with a fantastic script, and I think that is something that Anurag brought. This was his entire hard work in getting the right script. The second is star power, and I don't believe you can get better than this. And I think I can tell you that Karan, after this film, is going to have a choice of being nominated as either the best villain
or the best introductory act or debut, etc. So there are many, many options awaiting him at the end of this film. And finally, I think on a more serious note, we're seeing that audiences want something with a point of difference. And I promise you, this film, Bombay Velvet, is not only got a point of difference, it is an entertaining, mass appeal film. But I think we're going to need the support of the media to actually take this message deeper down. And आपका जो सवाल था, जैसे Anurag has said that, you know, whatever people have written about, they finished the film in 75 days. The film has been, we never give numbers, but I'm going to give numbers because, you know, I think the time has come to draw a line on this and focus on the right thing, which is the quality of the film. The film has cost us 80 crores, and I can tell you what you're going to see on the canvas is a film which is worth a lot more. So I think that's the point to focus on. Okay, now we have KK Menon who plays Vishwas Kulkarni, and Satyadeep Mishra is also here who plays Chiman. Satyadeep. अनुष्का या अनुष्का आप इस फिल्म में जैज सिंगर बनी हैं जैज सिंगर बनने संदीप के मिश्रा। लिए क्या क्या रेफरेंस पॉइंट आपके रहे हैं अनुराग ने मुझे काफ़ी कुछ स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुझे अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग फिल्में या रेफरेंस पॉइंट्स दिए थे. ही टोल्ड मी दैट माय सिंगर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ गीता दत्त, एंड एक रेफरेंस है फिल्म में जहाँ कोई बोलता है मेरे कैरेक्टर को कि मैं गीता दत्त की कॉपी करने की कोशिश करती हूँ एज अ सिंगर. But having said that, before we started shooting for the film, मैंने एशली लोबो जो हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर हैं उनके साथ मैंने बहुत ही एक लंबी ट्रेनिंग करी है टू बी एबल टू लुक लाइक अ कन्विंसिंग सिंगर. बिकॉज एक हम लोगों को एज एन एक्टर आदत हो जाती है टू माइम, लाइक व्हेन वी आर सिंगिंग हम थोड़ा वो वाली सिंगिंग अलग होती है. व्हेन यू एक्चुअली सिंग, व्हिच यू आल्सो सॉ विद रणबीर एंड रॉकस्टार, ही लुक्ड लाइक ही वाज actually singing. That was मोहित चौहान की आवाज़ और इनकी आवाज़ मतलब लग रहा था एक ही इंसान है. So that preparation I did before we started shooting for the film. So that's just how it developed. And after that, like I said earlier, with Anurag, he's very clear on one thing. He says that you can get reference points from everywhere, but ultimately what you find is in the script and with the help of your characters and your surrounding, which is what I think all of us as actors try to develop with the film. Yeah, क्या दिल धड़कने दो में भी आप जैज सिंगर बनी हैं? नहीं, आई एम अ डांसर इन द फिल्म. और आप सबसे सवाल है क्या बॉलीवुड में जैज म्यूजिक को आप कैसे देखते हैं? आप सबसे सवाल है. सुनते हैं. हाँ, पहले सुनते हैं, देखते बाद में. मतलब जैज़ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. जैज़ की जो हिस्ट्री रही है यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं उस बात से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सारे अरेंजर्स रहे हैं, चाहे वो शंकर जयकिशन के लिए थे, चाहे वो चिक चॉकलेट रहे हो, एंथनी गोंसाल्वेज रहे हो, सारे लोग जो हैं वो जैज़ म्यूज़िक से आए थे. यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़े जैज़ सिंगर थे. वो कोंकणी में जैज़ गाते थे, और उस समय ला बेला और एस्टोरिया और ऐसे बहुत सारे क्लब होते थे 60s में जहाँ जैज़ होता था. ज़्यादातर कोंकणी में होता था. जहाँ सारे टैलेंट जो है गोवा से होते थे, और फिल्म में हम लोग ने वो एक्चुअल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं. और उस समय बहुत बड़ी सिंगर थी लॉर्ना कॉर्डेरो, जिनसे बहुत सारा कुछ इंस्पायर्ड है इस फिल्म में. उनके अगर आप म्यूजिक वीडियोस देखेंगे वो यूट्यूब पे आज भी मिल जाएंगे आपको, चाहे बेबडो हो, चाहे कोई बहुत सारे गाने, वो आज भी जीवित हैं, आज भी गोवा में गाती हैं, आज भी वो 80s में अपने, और उनके शोज आज भी हाउसफुल होते हैं. तो ये फिल्म कहीं हवा में से नहीं आई है भाई, बहुत सारे रेफरेंसेज, और क्योंकि फिल्म आ रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने आर्टिकल्स भी लिखने चालू किए हैं. सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेज और रिस्पॉन्स मेरे उन लोगों से आया जो 60s में थे यहाँ पे, जो बहुत खुश थे ट्रेलर देख के. तो वो समय जो है बहुत सारे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आदमी को अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए. और वो जैज़ नहीं होता तो एक बहुत सारा अरेंजमेंट 60s और 70s का जो था वो वैसा नहीं होता. आप जितना आपने आरडी का म्यूजिक सुना है, आरडी बर्मन का म्यूजिक, उसमें बहुत सारा जैज़ का इन्फ्लुएंस था. वो जैज़ को हम धीरे धीरे भूल चुके हैं. हम बहुत म्यूजिक जो है बहुत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है. लाइव म्यूजिशियंस आजकल रिकॉर्ड नहीं करते. इस फिल्म के लिए हम लोग ने फाइनली जाके प्राग में लाइव म्यूजिशियंस ढूंढे, और प्राग में जाके सारा म्यूजिक लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है. इस फिल्म में जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है सब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड हुआ है. और उस तरह का जो जैज़ है वो है, एग्जिस्ट करता है. अगर आप जाएंगे आपको HMV की लाइब्रेरी में मिलेगा. अभी हाल में एक बहुत ही बेहतरीन कोंकणी फिल्म भी आई थी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ना कॉर्डेरो, जो कि जैज़ के ऊपर थी. Please keep quiet, Anurag.
रणबीर तो मैं बता रहा हूँ जैस को। रणबीर आई एम बेगिंग यू, रणबीर मेरी ये दरख्वास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। Ranbir, this question is for you. Ranbir and Anushka, you have had the fortune of working with the best of the directors. This time on, how was it working with Anurag Kashyap and working with Karan Johar as a co-actor? I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all know उनकी फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं. ये उनका एक बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं. I think for me, and I can say that for Ranbir also, that we are very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मज़ा आया. कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे. But he's very entertaining, obviously. It was great fun. रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि I'm always as good as the director. अगर डायरेक्टर अच्छा है then I will be good. So I have always been selfish कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ही इज़ एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट. मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो हीरोइन यहाँ लेटे हुए है, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था. मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग. आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ work that he inspires everyone to do, that's why he has that much of love, and I think we all have that much of love for him. Karan, of course, has been my personal mentor. I have done my third film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया एंड ही सेड तू मुझे दबा, लाइक गो फॉर इट, आई डोंट केयर. नहीं, नॉट इन दैट वे, वो टाइप ऑफ दबाने. तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा. बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा. Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं. वो शॉट ट्रेलर में भी है. रणबीर जी, आपकी दाहिनी ओर, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स काफी हो रहे हैं, लेकिन आपकी जनरेशन के जितने एक्टर्स हैं काफी सेट पैटर्न पर चल रहे हैं, और इस तरह का जोखिम लेने के पीछे क्या वजह थी? जैसे अनुराग ने कहा कि ये स्क्रिप्ट आपने प्लेन में पढ़ा और हाँ की. एक्चुअली उस दौरान मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा था जो हुई नहीं, तो विकास जो मेरे अजीज दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी. उस वक्त आई थिंक अनुराग ये फिल्म किसी और के साथ बना रहे थे. तो आई रेड इट ऑन द प्लेन एंड मैंने खुद अनुराग को फ़ोन किया और कहा कि आई लव दिस स्क्रिप्ट, आई लव दिस कैरेक्टर, आई रियली वांट टू डू दिस फिल्म. तो अनुराग खुद मुझे बोला कि यार तू तो बहुत मतलब अर्बन टाइप एक्टर है, आई डोंट नो इफ यू विल फिट इनटू दिस पार्ट, सो गिव मी 2-3 days, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू. आई हैड टू वेट एंड 2-3 दिन बाद फ़ोन नहीं किया इसने, 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया एंड सेड कि सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट आई हैड टू गेट एडजस्टेड टू द फैक्ट कि आई कैन सी यू इन दिस फिल्म. सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत कम स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको. Usually you want to work with a director, you want to work with a banner, but this was the first time that I judged after a long time actually on just the pure basis of a script. और जो कहानी थी और जो किरदार था सबका, I think that on the merit of that I was very excited to be a part of this film. अनुराग, मेरा सवाल एक और है आपसे, आपकी दाहिनी ओर. लद्दाख में मैंने आपसे सवाल किया था, उस समय अगली भी स्क्रीन हो रही थी और आपने कहा था एंजाइटी है क्योंकि आपका शो भी आने वाला है. बॉम्बे वेलवेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल जर्नी भी इस बीच रही है, तो उस लिहाज से ये फिल्म एक रिलीफ है? मैं फिल्म को लेके इतने साल ड्रीम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. मैं बहुत खुश हूँ और आपसे ज़्यादा मैं मारा जा रहा हूँ लोगों को फिल्म दिखाने के लिए. मैं मतलब किसी और से ज़्यादा मैं मारा जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि पहले देखो, क्योंकि इतनी सारे बातें मैं सुनता हूँ, मैं कहा तुमको मैं फिल्म दिखाता हूँ. तो किसी और से भी ज़्यादा मेरा बस चले, तो मुझे तो रोका गया है कि अच्छा कॉपी बन रही है प्लीज़ दिखाना मत किसी को क्योंकि मैं तो दिखा देता हूँ खुलेआम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Ranbir, straight here, slightly towards your left. Yes, sir.
Ranveer, your last commercial blockbuster hit was Ye Jawani Hai Diwani in 2013. There has been a short lull in your career after that, you know, with Besharam and Roy not doing well at the box office. Considering the fact that you're already seen as a superstar, and also the fact that the first trailer of Bombay Velvet didn't receive great reviews, does that put additional pressure on your shoulders to deliver with this movie? Yes, of course. As an actor, you want to deliver. You know, if I've been given a certain amount of love and respect for the kind of films I've done, I have to deliver. If Besharam doesn't do well, I take ownership of that. I think we all went wrong with that film. But that doesn't mean that, you know, you start thinking extra and, you know, you start putting this and that, ki ye film ko hit karana hai. As long as you're staying true to your work, you know, you work with good people, you work hard, that's all I can do. The fate of a film is not in my hands. So I hope that with Bombay Velvet, at least people give this film a chance. They come to the theaters, watch it, because we've really worked hard towards this film. And Manish Chaudhary is also here. Manish, he plays Jio Mistry. he was my boss in Rocket Singh also. But yeah, just to finish what you're saying is, I think pressure is very good. With pressure, we work harder, we move forward. Even in the morning, we need pressure to go to the bathroom. So pressure is always a good thing. We should always feel pressure in our lives. Anurag, a question for you. Why was the first trailer not launched in this fashion? And what was your reaction when you got to know that the trailer was not well received? I've been busy with the post-production of the film. That's a question for the marketing team to answer. It's a very well thought through plan, which I think But was a genius what plan. do you think about the first trailer? Me? I think it's a trailer for the film. It's a trailer that served its purpose. It creates a kind of a certain kind of an expectation, and slowly you reveal the film. We don't want to put out and unravel everything right in the beginning. And I think it's a very well thought through thing. And I have still been mixing, so I think Vijay ji is the best person to answer this question. Yeah, I think, you know, one of the very important things that at least we are finding at our end is that this old pattern of sort of, you know, going out with a trailer 8 weeks in advance and going on and on and on 8 weeks, I don't think audiences have got the attention spans for that. So easily we decided we do it slightly differently. We will release one trailer, then take a bit of a gap, release the songs, and then come back. Because really, I think audiences today, you know, वो 2-3 हफ्ते पहले ही सोचने लगते हैं कि कौन सी मेरे को film देखनी है. So I think there's a different model that we are working on, and I think this is also in keeping with the changing times, जहाँ, you know, audiences are, you know, they are getting very picky and choosy, and they really want to know more about the film before they go into the halls. Ranveer, one more question for you from my end. You know, just a couple of days back, we heard Katrina saying that she would have absolutely no problems if her wedding becomes a big grand media affair. Would you agree with her in the statement, or would you rather want to keep everything private? No, I think you cannot keep it private. We all are actors. And it should not be. I think wedding is always a celebration. But, you know, having said that, I must say this, that I have actually... I must say this, that my wedding date has been planned 6 years back. You know, since the time I had come into this industry, people always said, I'm getting married now, married now. I think it's a very special day, so let me announce it. As of right now, I have no plans. If I'm in love, yes, I'm in love. Do I feel responsible? Do I feel a sense of commitment? Of course, I do that. But जहाँ wedding का सवाल है, I think if अगर इतने ज़्यादा speculation चालू होती, then it spoils the fun of your own. You know, you want to set a date, you want to celebrate that day. So I would really request that, you know, if media stops speculating a date, because I will put a date out. I will not hide and get married because that doesn't make sense. You know, I also want to celebrate that institution. Anurag, Ranveer? right here. Hello. Sorry. आपकी आवाज़ को क्या हो गया? क्या बोल रही हो? Vicks की गोली लो. Yeah, you can complete that song. So, like you mentioned, a lot has been said and written about your movie, and it's been mired in controversies. Do you hold yourself responsible anywhere as a filmmaker for all that's been said? And how do you take it right before the release? Why would I hold myself responsible for all those things said? Nothing. Every time a new controversy came up, I would just go home and work out harder, and the responses have lost weight. रणबीर, my question is for you here. अभी थोड़े दिनों पहले आपने ट्विटर ज्वाइन किया था एक ब्रांड को लॉन्च करने प्रमोट करने के लिए. अभी थोड़े समय पहले कटरीना ने भी ट्विटर ज्वाइन किया. तो क्या इस फिल्म के लिए भी आप ट्विटर ज्वाइन करोगे, और क्या लगता है? Yeah, I don't think ऐसी नौबत आएगी. I don't think they are asking me to. I have,
उस दिन हमने मैं ट्विटर पे आया था क्योंकि जो एक ब्रांड था लेनोवो, वो एक फ़ोन लॉन्च कर रहे थे, सो दे वांटेड मी टू इंटरेक्ट थ्रू देयर हैंडल, इट वाजंट कि इट वाज माय अकाउंट, तो थोड़ा मिसकंसेप्शन था। मुझे ट्विटर से कुछ परहेज़ नहीं है, आई जस्ट फील एवरी ईच टू हिज ओन, बट आई रियली फील कि, एंड दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन, कि हमारे हिंदुस्तान में आई डोंट थिंक वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच येट। आप कुछ भी बोलो, देर आर 10 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दैट कम्स आउट। तो अगर आप, इफ़ यू डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन हाउ कैन यू यूज़ a medium like Twitter? There are very few people, like my father's on Twitter right now, and whatever he says, I have heard all those things while growing up. So he can speak his mind, you know. But why to create that extra speculation in your life? आप कुछ बोलोगे, उसके 10 अलग meaning निकलेंगे. Then you have to clarify that also. So you're just putting an extra headache on you. But no, I don't think I'm going to join Twitter through this film. Anurag, hi. Why is the film called Bombay Velvet? I know it is set in Bombay, but why the name Bombay Velvet? It's the name of the club, which is the most central to the film. The club is called Bombay Velvet. And one more question. There are you have Karan Johar in the film. You also have Ranbir Kapoor, who is very involved as an actor and as a person who knows films well. So was it difficult to control them in giving their inputs when it comes to the film? And because Karan is also a director, so in a good way he might have some inputs to I better never the- saw Karan as a director on the set. He came on the set as an actor and he stayed as an actor. And Ranbir was the one who was a director only to Karan Johar. Sir, Anurag sir. And Anurag sir. Yeah, on the right side. Nice name, Bombay Velvet. But I feel only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? We are all wearing Bombay on मेरा our faces. underwear velvet का है. मेरा भी. Karan, my question is for you. Yeah. Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. That you have. नहीं आपको मैं बोलूं, KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे. हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं, ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है. उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए. तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं. रणवीर, Karan to react आपके on right. this because रणवीर, like the जॉनी screenshot of बलराज the- को जीने के लिए. Let me complete my question. Yeah. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I sent him that No, message? of course not. But then I rest my case then. Hi. रणवीर, आपके राइट है. जॉनी बलराज को जीने के लिए इस किस्म के रिसर्च आपने किए? क्या आपने अल पचिनो को भी देखा, डिकैप्रियो को भी देखा, या आप एक अपने विजन के साथ आए हैं जॉनी बलराज को लेकर? आई थिंक ज़्यादातर मैं हमेशा डायरेक्टर पे लटक के चलता हूँ. एंड इन दिस फिल्म, लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, अनुराग ने बहुत सारा रिसर्च किया था. सब कुछ एज एन एक्टर, आई थिंक व्हाट यू फाइंड इज इन द स्क्रिप्ट. और पहला जो हफ्ता होता है सेट पर, यू डेवलप द कैरेक्टर देयर. बट हाँ, मुश्किल था क्योंकि वो स्ट्रीट लिंगो था, अपन टपन था, एक बॉडी लैंग्वेज था, जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो तो आप 1-2 दिन में जान जाते हो, लेकिन जो कैरेक्टर का जो एक इमोशनल डेप्थ होता है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, आई थिंक वो आप सीन बाय सीन जब आप करते रहते हो तब कुछ ना कुछ निकल कर आता है. आई ऑनेस्टली फील कि वी हैड सच ग्रेट एक्टर्स, यू नो, मनीष सर, अनुष्का, करण, के सर, सत्तू, विवान, भूविया, हु इज़ नॉट हियर टुडे ऑफ कोर्स. तो आई थिंक ये पूरा जो माहौल जो इन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था 50s बॉम्बे, जब हम आते थे सेट पर, ऑल ऑफ अस वी ऑल फेल्ट कनेक्टेड टू आवर कैरेक्टर्स. वी ऑल फेल्ट कि यार यहाँ कुछ इंस्पायरिंग चीज़ हो रही है, लेट्स ऑल रियली immerse ourselves, let's do something good, you know. So we all just stuck to our vision, and आज today, you know, when we look back and we talk about Bombay Velvet, अगर चले या ना चले, that's not in our hands, but we only have good things to say about it because we had so much of fun doing the film, performing the film, off set जो हम मस्ती करते थे. And I think if you have a good time on set, अगर माहौल positivity का होता है, वो कहीं ना कहीं frame पे भी screen पर आ जाता है. And I think that is what I really take away from this film, is like it was a lot of fun. You know, Ranbir. Last 2 questions, please. Hi, Ranbir- I have a question. Hi. Ranbir and Anushka, I have a question for both of you here. You know, mostly if you see, period films do not work at the box office. So when you were offered the film as an actor, were you apprehensive about signing the film ever? Not at all. Das was Actually, such a big success. Period Lagan. films are actually. Lagan was such a Gaddar. big success. Gaddar.
Barfi. Mostly they रुक जा, don't. हम तेरे और पीरियड फिल्म्स देते हैं. इतनी बनती नहीं है वो, बाकी वो पीरियड फिल्म नहीं होती है. मुगले आजम मास्करेडिंग एज पीरियड फिल्म. मुगले आजम से ज्यादा पीरियड फिल्म क्या हो सकती है? Hi, I have a question for the cast. Before Bombay Velvet hits the big screen on 15th of May, important decision in Salman Khan hit and run case will be out. That's on 6th of May. I just wanted to know how does the industry look at it? Are friends anxious about the decision? Karan, Anushka, Ranveer? You know, I think a matter like that is legal. So for us to give our perspective is not entirely the right thing, and this is certainly not the platform like this. All of us, we're a fraternity. I've never said we're not an industry. So all of us are deeply connected to Salman, and we stand by him, we support him, and we wish him all the best. All our thoughts are always with him. But to give a comment on the situation is not something that I think any of us should do, and especially not on this platform. But where it comes to love and support, we have that in abundance for Salman. विकास जी, Your विकास जी, please 1 second. अभी हमने ट्रेलर में 2-3 चेहरे नेगेटिव्स देखे, रणबीर जी का और करण जी का. तो मेन खतरनाक चेहरा आपके बाजू में बैठे हैं के साहब. इनके रोल के बारे में कुछ बताइए हमें. के एक्चुअली इस फिल्म में पॉजिटिव है. नहीं, ग्रेट एक्टर हैं वो, जबरदस्त विलेन हैं. हाँ, वो अपने जबरदस्त trailer में सबसे दिखाया पहले जबरदस्त. इन्होंने आपको विकास कहा. वो खामोश बैठे हैं, उनके बारे में बताइए. आप विकास हो. अनुराग सर, he's called you विकास. मैं विकास हूँ. वो ठीक है, वो क्वीन के बाद से सब मुझे विकास ही बोलते हैं. ये अनुराग का विकास हो रहा है. सर जब बर्फी हिट होती है मुझे लोग बासु बुलाते हैं. जब रावण आती है लोग मुझे अनुभव सिन्हा बुलाते हैं. जब दबंग आती है लोग मुझे अभिनव बुलाते हैं. और क्वीन के बाद विकास बुलाते हैं. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिर्फ हिट फिल्म में बनाता हूँ. एनीवे, तो सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर इनका फिल्म में, एंड इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो कुलकर्णी साहब थे, उनके ऊपर इनका कैरेक्टर बेस्ड है. और जो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे, तो उसके बारे में के साहब खुद कहेंगे. सब कुछ तो कह दिया इसने. यार बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए. इसके अलावा कोई फ़लसफ़ा नहीं है मेरे पास. दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म. एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वाकई में 60s में चले गए थे हम लोग. और हैट पहनना बड़ा मज़ा आता है यार. बहुत वो कभी लाइफ में पहना नहीं था फिल्म में. बाकी एक्टिंग होती रही बस. Hi Ranveer. Anushka, Ranveer, hi. your This question is for you. When it comes to playing a character from the 60s, you have a lot of examples in your family to follow. So did you go through any old films or footage of your family, and has any member from your family seen the trailer, the songs, and what kind of feedback did you get from them? बहुत सारे सवाल है, but to be honest, of course, I've seen all the films of my family members, and we all have, and we somewhere all are an offshoot of that kind of cinema. We are what we are because of those films. But नहीं, this film में ऐसा कोई references वहाँ के नहीं थे. It's probably the look, and we see from pictures and stuff like that, like I mentioned earlier. But I think Anurag Kashyap is the biggest reference for everything concerned with Bombay Velvet. Whatever we say, whatever we do, he is the true hero of Bombay Velvet, and there can't be a bigger reference than him. That'll be. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी.
महबूब की तस्वीर टांगे लगती है हल्की पड़ती है भारी लगती है हल्की पड़ती है भारी पड़ती है पानी को भर दिया, वन सिटी बॉम्बे, मेल खड़ा किया, पैसे बन